के अलावा और भी कम्युनिटी सर्विस एक्टिविटीज हैं. So that was a charter day. I would just like to barge into the conversation. I would like to add what Rohan said. What is Roundtable India? So अगर एक बहुत simple words में अगर समझना है तो like we do any project, हम लाइफ में कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं तो उसके लिए हम लोगों को एक टीम चाहिए होती है. बॉन्डिंग आती है फेलोशिप से. When you spend time together, when you have fun together, that is when you create your personal bond with each other. You create your relationships with each other, and that's how you create a good team. And because we have a good team, so we are able to execute big projects. Really, my social life is what is VRT 196. So that is how this tabling impact your individual. नहीं उसकी बदल सकती है. This is one thing. Hi everyone, I would like to welcome you all to the 7th episode of Talents Podcast. Myself Rudra Singh of class 11. So I'd like all of my guests to firstly introduce themselves. Hi, I'm Rohan Madhok and I'm the area vice chairman of Area 8. I'm also the member of Varanasi Roundtable 196. Hi, I'm Shobhit Agarwal. I'm currently the chairman of Varanasi Roundtable 196. Hi, I'm Dhaval Prakash. I'm the project convener for Varanasi Roundtable 196. I'm also the past chairman for VRT 196. Okay, so my first question to all of you is that what is Roundtable? Can you please describe it? मतलब basically ये है क्या? Roundtable, in its essence, it's a non-political and a non-sectarian organization, or it's for young people. Anyone who's not anyone, but age जो होता है, the age bracket is from 18 years to 40 years. यही लोग एक्टिव मेंबर हो सकते हैं राउंड टेबल के. एंड मोर और लेस इट्स अ philanthropic organization where like-minded people they come together and they do various kinds of community service activities like building infrastructure for underprivileged children. उनके लिए स्कूल बनाते हैं. अभी हील प्रोजेक्ट कोविड के टाइम पे राउंड टेबल को ये रियलाइज़ हुआ कि अपने मेडिकल फील्ड में कुछ गैप्स हैं, उसमें हम हेल्प कर सकते हैं. तो हील के नाम से वी हैव स्टार्टेड आवर प्रोजेक्ट जिसमें वी हेल्प वेरियस हॉस्पिटल्स फॉर बिल्डिंग अप डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. और इसके अलावा और भी कम्युनिटी सर्विस एक्टिविटीज़ हैं जैसे ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें भी हम लोग करते रहते हैं. सो इन अ नटशेल it's a philanthropic organization which is non-political, non-sectarian, and the members belong to the age category of 18 to 40 years. So when was VRT 196 established? See, Varanasi Roundtable is a chapter of Roundtable India. It's one of the whole organization Roundtable India. VRT Varanasi Roundtable 196 is a part of Roundtable India. So this table, Varanasi Roundtable 196, was established, basically chartered on 26th May 2007. So that was a charter day. I would just like to barge into the conversation. I would like to add what Rohan said. What is Roundtable India? So अगर एक बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर समझना है तो लाइक वी डू एनी प्रोजेक्ट, हम लाइफ में कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं तो उसके लिए हम लोगों को एक टीम चाहिए होती है, राइट. और एक अच्छी टीम होने के लिए आपस में बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी है, राइट. और बॉन्डिंग कैसे आती है? बॉन्डिंग आती है फेलोशिप से. व्हेन यू स्पेंड टाइम टुगेदर, व्हेन यू हैव फन टुगेदर, that is when you create your personal bonding with each other. You create your personal relationships with each other, and that's how you create a good team. And because we have a good team, so we are able to execute big projects, difficult projects. So I think that is one way what I have learned over the years, which gives a very good idea to a layman ki Roundtable exactly kya hai. Basically, it's a group of individuals with a common thinking who wants to do something good for the society. That is we can sum it up in. So मैं सबको एक बार बता दूं, even I'm part of Roundtable India. I'm part of VRT 196. I am currently the secretary of 2023-24 under the leadership of Shobhit Bhaiya. And तो Roundtable की कन्वर्सेशन के ऊपर मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा. ठीक है, कम्युनिटी सर्विस तो हम लोग को Roundtable की पता है, हम सब लोगों को, लेकिन Roundtable का एक फेलोशिप एस्पेक्ट भी है जो Roundtable बहुत ज्यादा जिसके ऊपर फोकस करता है. उसके ऊपर मैं आप लोगों से टच करना चाहूंगा कि कैसे Roundtable ने, VRT 196 ने आप लोग को सोशली इम्पैक्ट किया है. स्टार्टिंग फ्रॉम रोहन भैया. बहुत ज़्यादा हेल्प किया है Roundtable, वाराणसी Roundtable ने मेरा, बिकॉज व्हेन आई केम बैक टू वाराणसी इन 2013 तो मेरे बहुत ही गिने चुने फ्रेंड्स थे या गिने चुने ही लोग थे जिनको मैं बनारस में जानता था.
और वो लोग भी बाहर ही सेटल थे। तो अगर देखा जाए तो जो सोशल ग्रुप होता है वो मुझे VRT 196 से मिला है। और आज मैं कह सकता हूँ बहुत प्राउडली कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं बनारस में या बनारस के बाहर भी, वो सभी किसी न किसी तरीके से राउंड टेबल से कनेक्टेड हैं और राउंड टेबल के थ्रू ही बने हैं। सो इनफैक्ट माई सोशल स्टैंडिंग इन वाराणसी और इन माई एरिया विच कंप्राइजेज ऑफ tables coming from states like UP, Uttarakhand and Bihar, वो जो भी है it is all because of Round Table India. So and my table Varanasi Round Table 196. So yes, it has impacted a lot. आपकी इंडक्शन कैसे हुई थी? आप थोड़ा उस प्रोसेस पर टच करना चाहें तो? इंडक्शन का बड़ा फनी इंसिडेंट है, वो तो धवल ही बताएगा क्योंकि I was not there in my induction. हाँ, बट मुझे मेरा इंडक्शन मेरे बड़े भैया my cousin Mr. हर्ष मधोक, उन्होंने मेरा नाम प्रपोज किया था एंड ही गॉट मी इंडक्टेड इन द टेबल। और तुम्हारा इंडक्शन मेरी वजह से हुआ था मैंने तुम्हारा नाम दिया था। सो दैट्स हाउ इट इज, वो लाइन चल रही है। जी, शो किया। See, for me, Round Table, it's a fellowship organization. So, basic motto of the Round Table is doing good through fellowship. तो हम लोग का इसका एक मोटो ही fellowship है, जो बॉन्ड हम लोग क्रिएट करते हैं for doing something good for the society. That comes through fellowship. आज मतलब जो राउंड टेबल इज इम्पैक्टेड सोशली, तो ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया है मुझे, बिकॉज ऑल द पीपल आई हैंग आउट विद, जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं यू कैन से, वो सारे टेबलर्स ही हैं। सो इट हैज बिकम द पार्ट ऑफ माय लाइफ। जो एक सोशल एक फैमिली लाइफ होता है, एक सोशल लाइफ होता है। तो फॉर मी करंटली माय सोशल लाइफ इज व्हाट इज VRT 196. सो दैट इज हाउ दिस टेबलिंग इम्पैक्ट योर इंडिविजुअलिटी। आपकी इंडक्शन तक कैसे बात पहुंची? मैं और रोहन बेसिकली साथ में इंडक्ट हुए थे। रोहन और अमृत तीन इंडक्शन साथ में हुए थे। सो हमको ये बेसिकली आई गॉट टू नो अबाउट राउंड टेबल थ्रू धवल भैया, ही वाज अ सीनियर इन द टेबलिंग एंड एज इन लाइफ आल्सो, एंड विनम भैया। तो ये दोनों ने ही मुझे इसके बारे में बताया अबाउट राउंड टेबल, एंड देन दे सेड कि दिस इज अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन, यू शुड कम ऑन बोर्ड बिकॉज इट्स ऑल ऑफ अस ओनली। सो दैट इज हाउ आई गॉट टू नो अबाउट टेबल, एंड दैट इज हाउ आई गॉट इंडक्टेड इन द टेबल। First of all, I would like to thank you for asking this question because you know in general राउंड टेबल को लेकर के बहुत से लोगों के मन में बहुत अलग-अलग धारणाएं हैं, बहुत कुछ नेगेटिव थॉट्स भी हैं। So it's very nice that you asked that question. And when we talk about how it has impacted our lives socially, apart from the fellowship circle, the network circle, friend circle जो आप दोनों ने बताया, एक बहुत अच्छी चीज ये भी है कि आप ऐसे देखो तो एक अभी तक क्या चलता आ रहा है कि अगर कोई सोशल वर्क करना है फॉर एग्जांपल, तो कोई भी यंगस्टर होता है तो वो सोचता है कि अभी तो मेरी काम करने की, पैसा कमाने की उम्र है, जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, बड़ा हो जाऊंगा, बहुत पैसे कमा लूंगा, तब मैं कुछ सोशल वर्क करूंगा। बट जो न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स हैं वो ऐसा नहीं सोचते। वो लोग जिस दिन से एक स्टेबल जॉब में या एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जिनकी चालू हो जाती है, वो डे वन से सोचते हैं कि आई शुड गिव बैक समथिंग टू सोसाइटी। जिस सोसाइटी की वजह से मैं आज जो हूँ, मुझे अपनी सोसाइटी को गिव बैक करना चाहिए, राइट? सो कोई ऐसा ऑफिशियल प्लेटफॉर्म तो कहीं पे भी नहीं है जिसके थ्रू आप एक जेन्युइन तरीके से सोसाइटी को गिव बैक कर सकते हो। बट राउंड टेबल हैज कंसिस्टेंटली डेवलप्ड दैट गुडविल कि आप उस प्लेटफॉर्म के थ्रू सोसाइटी को गिव बैक कर सकते हो। एंड इट हैज गिवन मी द प्लेटफॉर्म बिकॉज I personally feel very good when I give something to somebody, or if I'm able to help someone, या कोई ऐसा जना हो जो कुछ करना चाहता हो, उसको पता नहीं कि ये कैसे करूं, और मैं जाकर के ऐसा कुछ उसके लिए कर दूं जो उसके लिए लाइफ चेंजिंग हो जाए। सो आई पर्सनली फील कि हम लोग के लिए ब्लेसिंग होती है। राउंड टेबल के थ्रू हम लोग को वो प्लेटफॉर्म मिला है, और इतने साल से आज मैं टेबलिंग में आई हैव बीन देयर सिंस मोर देन 12-13 इयर्स, एंड आज ऐसी सिचुएशन हो गई है कि मुझे लगता है कि हर महीने कम से कम मुझे 10 कॉल ऐसे आते होंगे कि भाई मुझे ये डोनेट करना समझ नहीं आ रहा, कहाँ करूँ, मुझे बता दो। People don't know. People want to donate things, they want to donate money, they don't know the right source. And आज राउंड टेबल के थ्रू कम से कम हम लोगों को एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल नागरिक की तरह देखा जाता है कि लोग हम लोग को कॉल करके पूछते हैं कि हम लोग कहाँ सोशल सर्विस कर सकते हैं। I think that is the biggest achievement socially that I think it has impacted me. And also it's a genuine source of philanthropic activities. मतलब राउंड टेबल, वाराणसी राउंड टेबल और राउंड टेबल के जितने भी टेबल्स हैं, सब लोग काफी जेन्युइन हैं। मैं इसके ऊपर टच करना चाहूंगा। सो बिफोर वी स्टार्टेड द पॉडकास्ट,
अभी हम लोग के प्रभास सर हैं, उनसे हम लोग की बात हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि काफी टाइम तक प्रभास सर एक ऑर्गेनाइजेशन में डोनेट कर रहे थे, ठीक है। काफी सालों बाद सर को पता चला कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो है अपना रिलीजियस एजेंडा पुश कर रही थी लोगों की तरफ। वो उनके ऑफिसेस गए, देखे कि उन्होंने अपने ऊपर खर्चा कर रहे थे डोनेशन के नाम पे, दे वर स्पेंडिंग ऑन देमसेल्व्स एंड अपना एजेंडा, अपना रिलीजियस एजेंडा, अपने अलग चीजें लोगों पे पुश कर रहे थे डोनेशन के साथ। सो आई थिंक राउंड टेबल इज दी ओनली ऑर्गेनाइजेशन जो जितना हम लोग डोनेशन देते हैं इनको, वो सारा वी कैन बी रेस्ट एश्योर्ड लोगों के पास अच्छी तरह। Officially, it is a zero overhead organization. Zero overhead that is organization. declared on the website of Roundtable India. We don't have a fixed office. We don't have a fixed. I mean, in Varanasi or any of the chapters, apart from the head office, obviously, एक single जो office, central office है वो छोड़ के सारे tables के individually कोई offices नहीं है. So it's a zero overhead organization. But let's make sure, I would like to say कि the thing is that जितने भी टेबलर्स हैं all over India and in Banaras also, ये लोग इतने well to do है ना, तो agenda, that is the whole agenda कि जो, because we do not want to spend that money on ourselves because our party budget is anyways very high which we are contributing from ourselves. So why this donation purpose is only for donation, because हम लोग का जो एक system which we follow, उसमें जो हमारा फेलोशिप के बजट्स होते हैं दैट वी कंट्रीब्यूट फ्रॉम आवरसेल्व्स एंड एवरी मिसकंसेप्शन है लोगों को लगता है, जैसे अभी हम लोगों ने रिसेंट फंडरेजर के भी है, मैसिव फंडरेजर इस टाइम, तो लोगों को ये मिसकंसेप्शन लगता है कि ये चीज ये लोग अपनी ऊपर अपनी चीजों के ऊपर खर्चा कर रहे हैं। सो आई वांट टू टेल यू कि कैसे ये कैश जो भी रेज हुआ है ये कैसे हम लोग अंडर प्रिविलेज बच्चों तक लेके जा रहे हैं। VRT 196 कैसे इसको कर रहा है आपकी ऐसे तो यू कैन से वी हैव अ लाइव एग्जांपल, वी हैव अ स्कूल रनिंग इन मिर्जा मुराद विद द नेम ऑफ राउंड टेबल अमना विद्यालय. So any person who has a doubt like that can go to that school and see the infrastructure of the school which we created. I don't think any this NGO schools or non-profitable जो भी इस टाइप की organization run schools हैं उसमें I think this is the best school in probably उत्तर प्रदेश. उससे बेटर स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना होगा. So if anyone can go to that school, उनको दिख जाएगा कि how we are actually investing that money and how the money is being spent. So I think our work will speak for itself. We do not, I cannot give you clarity कि कैसे करेंगे और क्या होगा. वो एक बार कोई वहाँ जाएगा तो उसको अपने आप दिख जाएगा कि कितने अमेजिंगली चीजें रन कर रही हैं. अगर इस चीज को सर्टिफाई किया जाए या एक स्टैंप लगाना हो कि हाउ वी आर क्लीन ऑन आवर अकाउंट्स एंड हाउ वी आर नॉट मिसयूजिंग आवर मनी. सो टेक्निकली आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड अपॉन दैट वाराणसी राउंड टेबल ट्रस्ट, it's a registered trust. It's covered under 12A and 80G. आज के टाइम में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से 80G का सर्टिफिकेशन मिलना, it's not an easy job. They audit your books, they see all the activities that you have been doing, and बहुत मुश्किल से आपको 80G सर्टिफिकेशन मिलता है. Second thing, जहाँ पे हम लोग का स्कूल है, the school is run by Kesari Devi Charitable Trust. Okay, that trust comprises of retired professors of BHU, retired judges of the High Court, and KDCT, Kesari Devi Charitable Trust in itself is also 12A 80G certified. So here the body that you are donating to or through you are donating to Varanasi Round Table, and the school is being also run by a 80G organization. So we are completely clean. Second thing, organizations like TCS, Tata Consultancy Services, उन्होंने डोनेशन दी है हम लोग के स्कूल में अराउंड 1.5 करोड़ रुपीस. HCL से डोनेशन आई है, Oracle से डोनेशन आई है, Oppo से भी आई है, Oppo से डोनेशन आई है. So all these organizations, MNCs, if they are donating, yeah, I mean if we are not compliant, और इन लोगों की जब TCS ने डोनेशन दी थी by the way, तो उनकी 3 दिन आकर के हम लोगों के स्कूल के अंदर पूरी ऑडिट हुई थी, सारी कंप्लायंसेस चेक हुई थी, and 6 months तक they were monitoring the running of the school. So अगर हमारे कोई भी फंड्स में कोई मिसयूज, मिसअप्रोप्रिएशन कुछ भी होता तो इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हम लोगों के स्कूल से अटैच नहीं होते. So can you please tell me that what project does Round Table India support? अभी जैसे हम लोग ने डिस्कस हमने किया है कि मेन तो 2 प्रोजेक्ट है. एक है प्रोजेक्ट हील which is about creating medical infrastructure for the underprivileged. This is one of the project, and second project is FTE. FTE हम लोग बोल रहे हैं, FTE का full form है Freedom Through Education, and that was the underlying motto and underlying principle of the Round Table India. Freedom Through Education का मतलब ये हुआ कि हम underprivileged बच्चों के लिए schools बनाते हैं, infrastructure provide करते हैं. Schools हम चलाते नहीं हैं,
हम किसी ना किसी NGO से टाई अप करते हैं या गवर्नमेंट स्कूल्स को हम अडॉप्ट कर लेते हैं, जिसमें हम उनके लिए क्लासरूम्स, टॉयलेट ब्लॉक्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, ये सारी चीज़ें बनाते हैं. सो दीज आर द 2 मेजर projects that we undertake through Roundtable India, which is Project HEAL for medical infrastructure and FTE, which is Freedom Through Education, जिसमें हम क्लासरूम्स और स्कूल्स बनाते हैं. इसके अलावा और भी फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं. आई थिंक धवल और या शोभित इस पे ज़्यादा बताएंगे. जैसे one of the activities which is अभी Roundtable is focusing on is Project HEAL. इस Roundtable का focus इस साल पे is on HEAL कि because the medical infrastructure in the country, उसको कैसे promote करें, कैसे लोग जो कि अनप्रिविलेज्ड है, जिनको मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही, उसको Roundtable ऑर्गेनाइजेशन कैसे उनके पास वो मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करे. आफ्टर कोविड दिस वाज द मेन एम्फेसिस फॉर Roundtable, बट जो हमारा मेन मोटो था दैट इज फ्रीडम थ्रू एजुकेशन. सो दैट इज द होल कंसेप्ट कि उसी के द Roundtable वर्क्स अकॉर्डिंग टू दैट मोटिव. तो हमारा ये रहता है कि वी एजुकेट द सोसाइटी, एंड वंस द सोसाइटी इज एजुकेटेड दे आर मतलब वो अपने डिसीजंस देन खुद से ले सकते हैं. सो दैट इज हाउ वी प्रोवाइड दिस फ्रीडम थ्रू एजुकेशन का. तो अभी करंटली हमारे प्रोजेक्ट कर लिए जैसे धवल पे है, सो ही कैन एलैबोरेट मोर ऑन द प्रोजेक्ट थिंग ऑफ इस पे टच है कि 196 ने इसमें क्या-क्या किया है. So basically, first in continuation with the FTE, why FTE? Why only education? Like और भी काफी social service organizations हैं society में, you know, like Rotary, Lions, they do many projects. Okay. कई लोग खाना डोनेट करते हैं, कई लोग कपड़े डोनेट करते हैं, हम लोग भी करते हैं, बट हमारा फोकस एजुकेशन पे क्यों है? बिकॉज कोई भी कंज्यूमेबल चीज अगर हम डोनेट करेंगे वो 2 दिन में खत्म हो जाएगी, राइट? बट अगर हम किसी व्यक्ति को एजुकेशन के थ्रू सेल्फ रिलायंट, सेल्फ डिपेंडेंट बनाते हैं, तो वो लाइफ लॉन्ग अपने जिंदगी बदल सकता है. उसको आप एक बार खाना खिला दोगे तो उसकी जिंदगी नहीं बदलेगी, बट एजुकेशन एक ऐसा सीड है कि अगर वो आप उसको प्रोवाइड कर दोगे तो वो अपनी पूरी जिंदगी उसकी बदल सकती है. दिस इज वन थिंग. एक और हम लोग का बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मैं जरूर बताना चाहूंगा, फ्लाइट ऑफ फैंटेसी. रिसेंटली भी ये फ्लाइट ऑफ फैंटेसी हुआ था, एंड आप सोचोगे, आप अपने वाइल्डेस्ट ऑफ ड्रीम्स में सोचो कि मतलब एक ऐसा बच्चा जो शायद कभी ट्रेन में भी ना बैठा हो, और ये शायद अपने गांव से भी किसी 4 पहिए पे, वो अपने गांव से भी कभी बाहर ना गया हो, उसको फ्लाइट से ताजमहल जाकर के देखने को मिले, तो उसकी फीलिंग क्या होगी? हम लोगों ने अपने Roundtable अभिनव विद्यालय के 50 बच्चों को फ्लाइट से आगरा लेके गए थे, ताजमहल दिखा करके वापस फ्लाइट से लेकर के आए. मैं जितनी बार भी ये बात शेयर करता हूँ मेरे को गूज़बम्स हो जाते हैं, बिकॉज आप उस बच्चे के थॉट प्रोसेस में जाके सोचो कि उसके लिए कितनी बड़ी चीज होगी, क्या एक्सपोजर उसको मिला होगा, उसकी फीलिंग ही पूरी चेंज हो जाएगी. सो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग. एंड दिस वाज ऑल डन थ्रू कॉर्पोरेट टाई-अप्स. इसमें हमने कोई फंड रेज नहीं किया था, या हमने अपने पैसे लगा के बच्चों के लिए टिकट्स नहीं ली थी. हमारा टाई-अप हुआ था इंडिगो के साथ, एयर इंडिया के साथ. फिर वहाँ जिस होटल में रुके थे, रमाडा में रुके थे, शायद बच्चे भी रमाडा होटल में रुके थे. हाँ, तो ये सारा कॉर्पोरेट टाई-अप्स था. ये सारे इट वाज ऑल थ्रू डोनेशंस. इसमें किसी भी इंडिविजुअल का हमने कोई पैसा नहीं लगाया था. बस ये था कि हाँ, हमने सबसे बातें करी थी. बुक माई शो भी इसमें, बुक माई शो वाज आल्सो इन्वॉल्वड, इंडिगो, एयर इंडिया, सारे लोग इन्वॉल्व हुए थे, और तब जाके ये पूरा सो वेल मैनेज्ड. बिकॉज अगर 2 टेबलर्स हम लोग जा रहे हैं और साथ में हमारे साथ 50 बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं, 50 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है. इसी तरीके से सेम डे पे पूरे इंडिया के आए थे, कई हजार बच्चे आए थे. हर टेबल ने अपने अपने FTE स्कूल के बच्चों को लेकर के एक ही दिन एक ही टाइम पे ताजमहल में गए थे. इतने सारे बच्चों को मैनेज करने के लिए हर बच्चे के साथ में एक डिवाइस लगी हुई थी जिनसे आप ट्रैक कर सकते हैं आपके 50 बच्चों में से कौन सा बच्चा कहाँ है. सेफ्टी के लिए इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो ये सब सक्सेसफुली, कोई मिसहैपनिंग नहीं हुई और सारे बच्चे सेफली वापस आए. तो आई थिंक इट इज अ बिग थिंग टू एग्जीक्यूट. ये एक ऐसी चीज है कि सिर्फ पैसा देके आप एग्जीक्यूट नहीं करा सकते. जब तक किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कन्विक्शन नहीं होगा, विल नहीं होगी, आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते ऐसी चीज. और एक और सबसे अच्छा प्रोजेक्ट जो अब हमने लास्ट ईयर स्टार्ट किया, प्रोजेक्ट सक्षम, जिसमें हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं. जो बच्चे Roundtable अभिनव विद्यालय में पढ़ते हैं, उनके पेरेंट्स के लिए हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए एक पोर्टल बनाया है, सक्षम पोर्टल. तो उसमें अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू नीड एन इलेक्ट्रीशियन और इफ़ यू नीड एनी हाउस हेल्प, तो हम लोग उस सक्षम पोर्टल में डाल देते हैं. और फिर वो स्कूल के जो मैनेजमेंट है वो हम लोगों को उन लोगों से मिलवाती है जो कि दे आर रेडी, दे आर लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट,
and then we What they have done is actually very interesting. उन्होंने सारे स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स की प्रोफाइलिंग करी है कि किसका क्या प्रोफेशन है, उसकी पूरी एक्सेल शीट बना रखी है और वो फिल्टर करके रखा हुआ है. आपको जो भी रिक्वायरमेंट है आप उनके स्किल सेट के हिसाब से आप अपना रिक्वायरमेंट दीजिए, वो आपको लोग दे देंगे. So it is also a huge database. मतलब सिर्फ एजुकेशन नहीं है, उसके साथ साथ हम लोग एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर रहे हैं. Let's dig deep into history now. How and when did you first hear about Roundtable India, especially VRT 196? How did you hear? VRT 196 तो मैंने जैसे बताया, हर्ष भैया ने मुझे उसके बारे में बताया था कि VRT 196. Did you have idea the Roundtable? I had no idea before that, and even after joining, I had no idea what is happening in the table. ठीक है, उस अब नए लोगों को नहीं मालूम रहता है, इतने टर्म्स इतने हेवी टर्म्स होते हैं, 196 और XCG, FDA. has to blend into I this. understand. I remember जब मैंने नया ज्वाइन किया था, when I was first inducted, मैं धवल भैया के साथ गाड़ी में था. We were going to एक BM या कुछ ना कुछ हम अटेंड करने आ रहे थे, आप और मैं साथ में. And then मैं धवल भैया के साथ, धवल भैया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई बुक है जिसे मैं पढ़ सकता हूँ. फिर इन्होंने मुझे ब्लू बुक दी थी. अब उसको समझने में ही मुझे कितने महीने लग गए कि इसमें लिखा क्या. तुमने पूरी ब्लू बुक पढ़ ली? नहीं, वो तो ऐसे ही बोल रहा था. तो वही है. So हाँ, 196 ज्वाइन करने के बाद फिर सिद्धार्थ गुप्ता, मिस्टर सिद्धार्थ गुप्ता, ही टुक मी टू द स्कूल राउंड टेबल अभिनव विद्यालय. वहाँ पे उन्होंने मुझे फोन करके बोला कि रोहन तुम्हें स्कूल दिखाना है, स्कूल चलो. मुझे लगा क्योंकि मैं स्कूल के, मेरा काम स्कूल का है, तो मे बी सिद्धार्थ भैया wants to open in school और मुझसे कुछ आइडिया लेना चाहते हैं, तो मैं चला गया साथ में. शोभित was also there, हम लोग सब साथ में थे. तो वहाँ पे ही showed me राउंड टेबल अभिनव विद्यालय, and I saw the work that the tablers are doing and VRT 196 is doing. उसके बाद से फिर I got pretty interested in the table, and then I thought कि हाँ ठीक है, एक ये अच्छी चीज है, and we should work for VRT 196. और राउंड टेबल की खासियत क्या है ना, सबके लिए कुछ ना कुछ है राउंड टेबल में. ठीक है, सिर्फ फ्रेंडशिप या फेलोशिप ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. आपके कुछ ऐसे टैलेंट हो जो आप करना चाहते थे पर नहीं कर पाए, थ्रू राउंड टेबल आप वो कर सकते हैं. For example, LAPD is one of the facilities. LAPD is leadership and personality development. For example, Rohan himself, he has attended TDT program, train the trainer programs. I think you should put some. I'm an active facilitator in the area. राउंड टेबल में सबके लिए कुछ ना कुछ है. अगर आप क्रिकेट में अच्छे हैं तो एरिया 8 प्रीमियर लीग होता है, जिसमें पूरे एरिया के 22-23 टेबल से 4 टीमें बनती हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं. फिर उसके बाद ये तो एरिया लेवल का क्रिकेट हुआ. उसके बाद नेशनल लेवल का एक जाफा होता है, उसमें यू कैन बी अ पार्ट इफ यू आर गुड इन क्रिकेट, इफ यू आर गुड इन, अभी स्टैंड अप कॉमेडी भी बहुत अच्छा चल रहा है. इफ यू आर गुड इन मेकिंग जोक्स, इफ यू गुड इन टेलिंग जोक्स, you can perform as a stand-up comedian, not as a stand-up comedian, but yes, you can have your own skit. Acting के लिए भी स्कोप है. कुछ टेबल, अपना एक मिर्जापुर का टेबलर है कृष्णा, so he is into modeling and acting, तो वो अपनी वीडियोस बना के कुछ ना कुछ प्रमोट करता रहता है through his acting. So राउंड टेबल गिव्स यू विंग्स, देखा जाए तो एक तरीके से. कृष्णा भैया इज टू गुड. कृष्णा का जो है, वी सॉ अभी हम लोग की वो मिर्जापुर में EX थी, उसका EX का इनवाइट भेजा था, और आपके लिए भी उन्होंने एक वीडियो बनाया था, एंड एक टीवी शो के ऊपर बेस करके उन्होंने अपना कैरेक्टर किया था, नेक्स्ट लेवल उन्होंने किया था. एंड देन वी वर एट द EX, याद है, एंड देन वहां पे उन्होंने अपना पूरा स्किट किया था. पहली बार मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया कि सामने कोई आपके स्किट कर रहा है, आपको इमोशन फील हो रहा है अपने अंदर. ये टैलेंट कहीं और किसी और ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे बाहर नहीं आ सकता था जितना उनका इसमें आ रहा है. जाफा ऑल्सो, जो एक राउंड टेबल इंडिया एक होस्ट करती है क्रिकेट टूर्नामेंट जिसका नाम है जाफा, वो IPL लेवल का टूर्नामेंट होस्ट होता है, और उसके सारे मैचेस ये सारे इंटरनेशनल स्टेडियम्स में होते हैं. मतलब दैट इज ह्यूज इवेंट फॉर 3 days. वो इंडिया में आई डोंट थिंक अभी कोई ऑर्गेनाइजेशन और ऐसा उतना बड़ा उस वेलोसिटी का इवेंट करती होगी. इनफैक्ट अभी इस साल का जो जाफा हुआ था वो एरिया 8 हमारे एरिया ने ही होस्ट किया था, और लखनऊ में हुआ था, और फाइनल मैचेस जो है वो एकाना स्टेडियम में हुआ था, जहाँ पे अभी वर्ल्ड कप के मैचेस, अभी इंडिया इंग्लैंड जहाँ होने वाला है, एट द सेम स्टेडियम वी वर प्लेइंग जाफा फ्रॉम राउंड टेबल. एंड वाज ऑल लाइव ऑन YouTube, एवरीवेयर यू कैन सी, कहीं से भी कैन एक्सेस इट. आई आल्सो विटनेस्ड वन ऑफ दोस मैचेस इन कानपुर, एंड ट्रस्ट मी, इट्स अ साइट टू वॉच. प्रॉपर जर्सीज, किट्स में प्रॉपर लाइव
कमेंट्री चल रही है, एवरीथिंग, आई मीन फ्रॉम चीयर लीडर्स टू, आई मीन एवरीथिंग इज रियल, इट्स लाइक अ प्रॉपर मैच, यू नो. आई कैन बोस्ट कि मैंने तो खेला है जाफा. आप तब नेशनल्स में भी जा रहे हैं. मैंने जाफा खेला और अभी हम लोग एरिया 8 प्रीमियर लीग खेल के आ रहे हैं. एंड यू वुड बी हैप्पी टू नो कि बनारस की टीम अभी चैंपियन हुई है. अभी हम परसों तो आ रहे हैं खेल के संडे को ही. एंड वी हैव वन दैट टूर्नामेंट. दैट इज ह्यूज. देयर इज अनदर वेरी नाइस, आई मीन लाइक यू टॉकिंग अबाउट कि हर किसी के लिए कुछ है. सो लर्निंग वाले पार्ट पे राउंड टेबल इंडिया हैज टाई अप विद ऑल द IIMs. Yes. So there are leadership programs which are organized exclusively for Roundtable members, Roundtable and Lady Circle India members, जहाँ पे आप किसी भी IIM में जा करके आप ट्रेनिंग ले सकते हैं. तो I was one of those lucky people who went and stayed inside the IIM Ahmedabad campus and we had a training program. It was a 3-day program. 3-day leadership program. जानबूझ के 3 डे नहीं बोला था, वरना लोगों को लगेगा कि IIM का नाम तो बोल दिया, लेकिन नहीं, 3-day program in IIM also it's a very big deal. It was a very good experience to stay inside the campus of IIM. ऐसे तो कहाँ जाने को मिलेगा, you know, until unless you don't have a proper channel. आप जाके रह तो सकते ही नहीं, आप विजिट कर सकते हो, बट और वहाँ की फैकल्टी ने हम लोगों को पढ़ाया. एंड एक एटमॉस्फेयर IIM के क्लासरूम में बैठ करके क्लासेस अटेंड करना, यू नो, अपने आप में बहुत ही वेरी गुड थिंग. सो जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि राउंड टेबल की डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में भी हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है और सब चीजें हैं. तो मैं चालू करना चाहूंगा फ्रीडम ड्राइव के ऊपर. फ्रीडम ड्राइव जो है मेरे लिए बड़ा इंट्रिगिंग रहा है. मैंने बहुत ज्यादा उसको मिस किया है, जिसमें आप लोग एरिया 8 जैसे जो यूपी एंड बिहार को एरिया 8 उत्तराखंड, तो एरिया 8 के सारे टेबल्स में आपने विजिट किया था. सबको बाय रोड आप लोगों ने हर किसी से मिले थे. अपनी प्लीज फ्रीडम ड्राइव की कुछ स्टोरीज आप बताइए. So this was actually a national initiative. ये राउंड टेबल इंडिया का इनिशिएटिव था. उस समय नेशनल प्रेसिडेंट वाज टेबलर मनीष लाखोटिया. ये उन्हीं का इनिशिएटिव था कि एक फ्रीडम ड्राइव की 2 गाड़ियां होंगी. Why we call it freedom drive? Because हम राउंड टेबल इंडिया के एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स हर टेबलिंग सेंटर्स में जाते हैं और एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स उसके पब्लिसाइज करने की कोशिश करते हैं. सो दैट्स व्हाई इट वाज अ फ्रीडम ड्राइव. और इसमें गाड़ी से ही जाना होता है हर जगह. और हमारे एरिया में ये शुरू हुआ था. इट स्टार्टेड फ्रॉम पटना. फिर देयर अराउंड 22 टेबलिंग सेंटर्स अपने एरिया में. तो मैं और अपूर्व भैया, अपूर्व माथुर, he is also a legendary tabler. he is also legendary. He is IPC also. Immediate past chairman. Yes. फिर मिस्टर आशीष सिंघानिया, टेबलर आशीष सिंघानिया, he was the area chairman at that time. I was his AST. और टेबलर विकास चंद्रा फ्रॉम पटना. ये फ्रीडम ड्राइव भी it was basically sponsored by Citroen. Citroen की ही गाड़ियाँ थी जो हैदराबाद से बैंगलोर से स्टार्ट हुई थी. और then it was being passed on to one of the other tabler one by one. So I mean, तो मतलब एक हफ्ते में हम लोग 22 टेबलिंग सेंटर्स गए थे. पटना से शुरू किया था. पटना, बनारस, मिर्जापुर, भदोही, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, बरेली, सीतापुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत, हल्द्वानी, रुद्रपुर, मुरादाबाद. ये हमने ये एरिया इतने टेबल्स कवर किए थे. आप लोग जब ऐसे ट्रैवल करते हैं विद ऑल योर फ्रेंड्स, विद एवरीवन, फेलोशिप एस्पेक्ट पर जब मैं बात कर रहा हूँ, तो हाउ डज इट चेंज यू? मतलब आप सब लोग साथ में, यू नो, हम लोग सब के लिए आर गोल्डन डेज वर कॉलेज लाइफ एंड स्कूल लाइफ. ऑफ कोर्स जैसे तुम अभी स्कूल लाइफ में हो, सो मतलब अभी तुम तो गोल्डन पीरियड में हो. हम लोग की एज तक आते हैं, स्पेशली मतलब मैं तो फिर भी यंग हूँ, सॉरी, बट हम लोग की बेसिकली एज तक हम लोग की एज तक आते यू स्टार्ट लुकिंग बैक एट दोस डेज. ठीक है, जिस डेज में तुम हो, वी ऑलवेज मिस इट. तो जैसे फ्रीडम ड्राइव में मैं क्यों इतना टच करना चाह रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम बहुत सालों बाद आप अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल करे थे फॉर 1 वीक. मतलब अंदर से कैसा फील हो रहा था? I'll add on to this. ऐसा जरूरी नहीं था कि हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल कर रहे थे. कई लोग तो उस ट्रैवल के दौरान दोस्त बन गए अपने. Right, so which was the best part of that freedom drive? मैं अपूर्व में कहते हैं ना कि you meet your best old friend for the first time. You meet your best friend for the first time. इस पे मैं स्टोरी टच करूंगा. I don't know if you remember. So बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. We had a great fun.
and wherever we went we got very warm welcome by from all the tables. So it was a very good experience, very enriching. You also went for that off-roading. We did off-roading in Rudrapur. That was also one good experience. Rudrapur का Still happening अभी this year. जंगल में अभी हो रहा है Rudrapur नवंबर में फ्रीडम ड्राइव फिर से हो रहा है, and the freedom drive will be ending up with Rudrapur off-road car rally. So you should come. You all should come. वो एकदम जंगल I think you should share with everyone about that off-roading car rally. Off-roading car rally is something that you have to experience it. यहाँ पे मैं कितना भी उसके बारे में बोलूँ ना, वो justified नहीं होगा. मजा नहीं होगा. So it's an amazing experience and one should go for that off-roading car rally. बहुत अच्छा था. फ्रीडम ड्राइव की सारी बातें एक कहानी के बिना अधूरी हैं. हमारे एक टेबलर है विकास भैया, विकास चंद्र, जिनके बारे में जिनकी काफी स्टोरीज है, and I've met him and I love that person. ठीक है, he's a very lively person and someone जिनसे मिलके लगता ही नहीं आप उनसे पहली बार मिले हैं. तो वो फ्रीडम ड्राइव पे जब आए थे तो वो आए थे इनिशियली सिर्फ 2 दिन के लिए, वो बनारस तक के लिए आए थे. जितना मुझे मैं उनसे मिला भी एक दिन के लिए आया था. I was fortunate enough to meet him इन लेजेंडरी कहानियों के बीच में. Then he was here and then फिर वो यहाँ से लखनऊ तक या कहाँ कानपुर तक गए थे, फिर उनको वहां से रिटर्न जाना था. फिर वो उसको बनारस से रिटर्न जाना था. हम लोगों ने खींच लिया उसको पूरा मुरादाबाद तक. और फिर मुझे याद है कि मतलब ये स्टोरी हुई कि जहां जहां ये लोग स्टॉप लेते थे वहां से उनको रिटर्न आना था. वो कभी गए नहीं, करते करते वो पूरा ही एरिया 8 कवर कर रहे हैं इन लोगों के साथ. और एक कपड़ों में one set of clothing. By the end बताना था नहीं. माइकल एंजेलो के जूतों की तरह हो गया था कि वो 21 दिन तक माइकल एंजेलो पेंटिंग कर रहा था बिना कपड़े चेंज किए. हम लोग एरिया का माइकल एंजेलो हो गए. विकास में अगर आप ये पॉडकास्ट देखें तो ये बात मैंने नहीं बोली. खुश होगा देखकर. पता है. अच्छा, बिफोर वी क्लोज दिस टॉपिक मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो ये जो आपने टच किया ना स्टोरी कि राउंड टेबल, जब भी आप किसी टेबलर से मिलते हैं यू मीटिंग योर बेस्ट फ्रेंड फॉर द फर्स्ट टाइम. तो हम लोग जयपुर में थे फॉर जयपुर एरिया जनरल मीट. मैं रोहन भैया हम लोग साथ में थे एंड देन रोहन भैया वाज वेयरिंग राउंड टेबल इंडिया की टी शर्ट. तो एक आदमी ही कम्स अप टू अस, आके कहता है यू गाइस आर टेबलर्स. तो उस टाइम तो मैं इंडक्ट भी नहीं हुआ था, आई डिडंट नो मच अबाउट राउंड टेबल के बारे में. तो रोहन मैंने कहा हाँ. तो कहता है कि मैं भी टेबलर हूँ, यहाँ आप लोग क्या कर रहे हैं. तो रोहन मैंने बताया कि एजीएम है, ये सब है. करते करते वो उसमें इनवाइट भी हो गया, रात को वो आया भी था. और मैं रोहन से रोहन भाई अचानक से मतलब उससे इतना जेल कर गए, अचानक से उसने आपका नंबर भी ले लिया. करते करते रात को हम लोग के साथ बैठ के वो डिनर भी कर रहा है. इंसान जो ऐसी नॉर्मली हम लोग को मिला था बाहर होटल चलते चलते, और उसकी रात की फ्लाइट थी, हम लोगों ने उसको रोक लिया, वो गया भी नहीं. वो एजीएम करके अगले दिन गया वापस. That is also what you experience when you travel abroad. Because Round Table is an international organization. शिशिर भी ऐसी स्टोरीज बताते हैं बहुत सारे. थोड़ा बहुत मैंने भी एक्सपीरियंस किया है. शेयर करो ना आप. हाँ मतलब लाइक जैसे राउंड टेबल इंटरनेशनल है राइट. सो जैसे राउंड टेबल इंडिया है वैसे हर कंट्री की अपनी राउंड टेबल है. उस कंट्री में भी राउंड टेबल के अपने अपने चैप्टर्स हैं. एंड आई थिंक मैं सिंगापुर में मिला था टेबल से. आई वाज जस्ट विजिटिंग एंड एक मैसेज डाला और 3-4 लोग मिलने आ गए एंड they were ready to help you out with everything. So when you are traveling anywhere, you are not alone. If you are a tabler, you are not alone. It's a very close knit community. Internationally also it's a very close knit community. एक बड़ी अच्छी स्टोरी हम लोग के ही एक टेबलर हैं, टेबलर उत्कर्ष रस्तोगी. हम लोग के फ्रेंड भी हैं, टेबलर भी हैं. तो ये वाइजैक गए हुए थे. ओके एंड बिकॉज ही वाज इन वाइजैक दे थ्रू अ पार्टी फॉर हिम कि बनारस से टेबलर आए हुए तो उनसे मिलने के लिए सब लोगों ने एक पार्टी रख दी. ठीक है, पार्टी खत्म हो गई, उनको स्टेशन पे ड्रॉप करने के लिए गए और वो सारे चले गए मूवी देखने पार्टी के बाद. और इनकी ट्रेन लेट हो गई. तो बाय चांस किसी टेबलर ने कॉल किया कि भाई ट्रेन पे बैठ गया. बोले नहीं यार ट्रेन 1.5 घंटा लेट है. कैन यू इमेजिन 30 कपल मूवी छोड़ के वापस आकर के उसके साथ स्टेशन पे बैठ गए कि जब ट्रेन जाएगी तब तक वो छोड़ के जाएंगे. Can you imagine? That is huge. That is the basic culture we also do that when the tabler is traveling to a शोवित भाई ये दिखाना चाहते हैं हम भी करते हैं. हम लोग करते रहे. एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं. जैसे अब आपके टर्म्स में अगर मैं समझाऊं तो किसी ने अगर आईआईटी निकाल लिया है तो यू नो कि वो बंदा जो है पढ़ने में तेज है, उसके पास दिमाग है. इफ यू क्रैक आईआईटी और इफ यू क्रैक नीट और इफ यू आर इनटू एम्स, यू नो दैट गाय इज एट अ सर्टेन प्लेटफॉर्म राइट. सो इफ यू आर अ मेंबर ऑफ राउंड टेबल तो वो हमारे लिए भी होता है कि हाँ ये सर्टेन प्लेटफॉर्म पे ये आदमी है एंड ही इज अ जेन्युइन गाय और इस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं. इवन इफ आई एम मीटिंग हिम फॉर द फर्स्ट टाइम
ओनली बिकॉज ही इज अ मेंबर ऑफ द राउंड टेबल, क्योंकि राउंड टेबल में इतनी जल्दी इतनी आसानी से किसी का इंडक्शन भी नहीं होता। That is also one of the main. So that is also inductions अपने बहुत ही inductions का procedure is little tough. It's tough to get into the round table. विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर बनने के बाद से शोभित को दर्शन कराने के लिए कॉल बहुत ज्यादा आ रहा है। वो पंडित से ज्यादा शोभित को ट्रस्ट करने लगे। Actually, it is very difficult because I remember जो हम सब लोग का, मैं और मेरा दोस्त श्रेय, हम सब के साथ में इंडक्ट हुए, वो पूरा एक पीरियड होता है जब हम लोग ने अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों को भेजा था, तब से लेके पहला जब तक इनवाइट आता है, then we start thinking कि क्या हुआ है आगे, कब होगा आगे, क्या होगा, then हम लोग वेट करते हैं। मैं शोभित की कॉल के वेट कर रहा था कि कब आऊंगा, कब कॉल आएगा, कब मैं आऊंगा। सो बट इट इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल प्रोसेस। मुझे पूरा प्रोसेस बहुत अच्छी तरह मतलब मैं बहुत फॉन्डली इन सब चीजों को याद करता हूँ। You have to, because when you become a tabler, lot of people trust you. मतलब they start trusting you. So to gain that trust, the induction should be very मतलब वो बहुत मॉनिटर होना चाहिए। अपनी इंडक्शन प्रोसेस पे थोड़ा बताइए, कैसे आप लोग नए प्रोस्पेक्ट्स को लेते हैं, क्या क्या उसमें आप देखते हैं। एंड एक 196 के प्रोस्पेक्ट से मैं सोच रहा हूँ बताएं। एंड रोहन भैया और धवल भैया, आई वांट यू टू एक्सपैंड कि आप लोग नेशनली कैसे होती है ये चीज। 196 के तो हमारे अपने रूल है कि हम लोग इंडक्ट करते हैं तो हम लोग ये चीजें देखते हैं। राउंड टेबल इंडिया क्या देखता है, लोगों को लेते हैं। एक्चुअली हर टेबल का अपना अपना रूल होता है, Okay. ठीक है। एवरी टेबल इज फ्री टू सेट इट्स ओन रूल ऑफ इंडक्शन, बट हाँ ये है कि इट इज एन इनविटेशन ओनली ऑर्गेनाइजेशन। Okay. इसमें कोई भी जैसे कोई भी आदमी, अगर टेबलर नहीं हूँ तो मैं अगर बोलूँ कि नहीं मुझे राउंड टेबल का मेंबर बनना है, ये लीजिए मेरी मेंबरशिप फीस और मुझे इंडक्ट करिए, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। ये हर टेबल में बाय इनविटेशन ही होता है। और आपको अगर मैं किसी को जानता हूँ जो कि मैं समझता हूँ कि ये टेबल के लिए ये आदमी अच्छा होगा, ये मूवमेंट के लिए ये आदमी अच्छा होगा, जो कि हमारा बेसिकली कम्युनिटी सर्विस ही है घुमा फिरा के, तो उसमें फिर मैं नाम प्रपोज करता हूँ। और मेरे नाम प्रपोज करने के बाद एक प्रॉपर वोटिंग होती है। वोटिंग में 75% वोटिंग येस होगी, देन दैट बडी, उसको बडी बुलाते हैं जब तक मैं प्रपोज कर रहा हूँ। उसके बाद ही बिकम्स अ प्रॉस्पेक्ट बनने के बाद उसको 6 बिजनेस मीट्स में आना पड़ता है। आफ्टर कमिंग टू दोज 6 बिजनेस मीट्स, उसके बाद फिर से एक वोटिंग होती है, एंड देन ही इज इंडक्टेड एंड ही बिकम्स अ प्रॉपर टेबलर। इस पूरे प्रोसेस को होने में कम से कम 6 महीना लगता है। And the voting is also secretive. Secret voting. It's like a black ball, white ball system. हाँ, So, हाँ. for example, if your name is being floated on the floor, and if someone XYZ doesn't want you or is not very comfortable, to share those moments with you as a tabler, so it's just a blank slip जिसके ऊपर आप no लिख के डाल दो without writing your name. Nobody is going to question you कि ये किसने no लिखा या क्यों आप इसको नहीं आना चाहते हो. No means no. अगर 30% लोग ने वोट आउट कर दिया तो आप नहीं इंडक्ट कर सकते। नेम्स आप कैसे चूज करते हैं? जैसे जिनका भी आपको नेम अगर डालना होता है मेंबरशिप के लिए, तो आप कैसे उनके नेम्स को, मतलब कहाँ से आप लेते हैं? अपने शहर से ही ऑब्वियसली लेंगे, और वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम किसको चूज कर रहे हैं, किसका नाम आने जा रहा है, राइट। जो भी नाम प्रपोज कर रहा होता है उसकी भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक शहर के प्रतिष्ठित इंसान को ही चूज करे, उसी का ही नाम आगे बढ़ाया जाता है। एंड दैट्स हाउ वी सी। मेनली हम ये देखते हैं कि अगर कोई आदमी अगर हमारे मूवमेंट को ज्वाइन कर रहा है तो वो हमारे मूवमेंट को किस तरीके से हेल्प कर सकता है, ठीक है। मॉनेटरी वाइज नहीं, बट अलग तरीके से कैसे वो what you are putting up on the table basically वो होता है कि उसके पास क्या इम्पैक्ट ला सकता है, उस इंसान की पर्सनालिटी कैसी है, उसका आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ क्या है, उसकी अगर कोई हॉबी है, so that's an added advantage because it's fun to be with people with different kinds of hobbies. So I mean anybody with and something additional in their personality is always a plus. Is a plus point. राउंड टेबल मैंने देखा ये चीज की, एटलीस्ट मैं पूरे राउंड टेबल की तो बात नहीं कर पाऊंगा, मैं अपनी VRT 196 को देख रहा हूँ क्योंकि मैं उसके लेंस से ही राउंड टेबल को देखता हूँ। तो हम लोगों में एक कॉमराडरी बहुत है। हम लोगों में ऐसा है कि जब आप एक बार आते हैं ना, हर कोई आपको एक ओपन आर्म से एक्सेप्ट करता है। मैं आपको इंसिडेंट बताऊंगा कि मैंने
जब कब मुझे ये चीज हिट की, जब हम लोग सबके सब नेपाल गए हुए थे, दैट टाइम नेपाल हम लोगों ने जॉइंट मीट की थी वहाँ के नेपाल के टेबलर्स के साथ। फिर जब हम लोग यहाँ से गए थे, देन हम लोग के एक टेबलर है मिस्टर राजेश शाह। मैं राजेश भैया अब तो बोलता, मैं उनको अंकल बोलता था पहले, मतलब काफी बड़े एज में। आप देखिए मेरा और उनका एज गैप इतना है, बट नाउ ही इज सो क्लोज टू मी। It's all thanks to राउंड टेबल। तो नेपाल ट्रिप वाज अ टाइम जब मैं राजेश भैया हम लोग सब लोग जब गए थे, वहां पे मैं उनको एयरपोर्ट पे लैंड करते ही फ्लाइट में उनसे बात करने के बाद, लैंड करने के बाद मैं उनको अंकल से भैया पे आ गया था। एंड आई थिंक दैट वाज अ टाइम जब मुझसे बहुत खुश थे। ये एज फैक्टर बहुत प्ले कर रहा है। आर यू ट्राइंग टू पोर्ट्रे दैट यू आर द यंगेस्ट मेंबर? नहीं, एक्चुअली क्या, अगर मैं नहीं करूंगा तो वो करेगा। So actually that is one of the best part about table is कि आपके फ्रेंड सर्कल का जो एज गैपिंग है ना, जैसे आई एम 34 एंड आई एम वेरी गुड फ्रेंड्स विद वन ऑफ द टेबलर हु इज 54 ईयर ओल्ड। यस, सो वो गैपिंग खत्म हो जाता है, and you interact like that with the there's a line, once a tabler always a tabler। irrespective of पता है how ये old भैया वाला कल्चर ये हम लोगों में है, एरिया 8 में है या नॉर्थ इंडिया में है। When you go to South India, वो आपसे 20 साल बड़ा भी क्यों ना हो, अगर टेबलर है तो you address him by his first name only। हाँ, ये तो ये नॉर्थ में हम लोगों में है कि भाई भैया बुलाते हैं, just like a fraternity ना, जैसे I am from a boarding school, वहाँ पे भी हम लोगों को भैया बोलना अलाउड नहीं था, सर बोलना अलाउड नहीं था। अगर किसी का नाम आप 8th क्लास में भी हो, वो 12th स्टैंडर्ड में भी है, तो भी आप उसको नाम से ही बुलाओगे। दैट इज द कल्चर। अभी ये डे स्कूल्स में यूजुअली आई थिंक नहीं होता। बट सो बेसिकली वो फ्रेटर्निटी, एक अलग फ्रेटर्निटी की अलग फीलिंग ही होती है, वैसे ही है राउंड टेबल में। तो साउथ में तो नाम से बुलाते हैं, कितना भी सीनियर क्यों ना हो। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस अभी तक का राउंड टेबल में? अपना एक्सपीरियंस बताओ। आई एम स्टिल लर्निंग, अभी तक सीख ही रहा हूं, यू नो। सो मुझे सेक्रेटरी के लिए शोभित भैया, बल्कि शोभित नहीं, तुम्हारा नाम भी इन्होंने मुझे इंडक्ट भी किया था, ठीक है। एंड इन्होंने ही मुझे जब, तो ये नेपोटिज्म का प्रोडक्ट नहीं है। रोहन भी अपना नाम क्लियर कर रहा है। मैं नेपोटिज्म का प्रोडक्ट हूँ, ये नहीं है। रुद्र के सारे क्वेश्चंस छीन लोगे तो मैं बताना चाहूँगा। सो माय एक्सपीरियंस, तो पहले तो राउंड टेबल के बारे में मैंने जितना भी सुना था अपने रोहन भैया से सुना था, एंड देन मुझे बड़ा इंट्रीगिंग लगता था, आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो एक बार रोहन भैया और मैं हम लोग डिनर पे गए थे, मेरा बर्थडे डिनर ही था, बर्थडे ईव का डिनर था। एंड देन रोहन भैया को मैंने बोला, रोहन भैया वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, एंड देन फिर जो हुआ आगे, फिर इंडक्शन सबका सब। व्हेन आई गॉट इंडक्टेड, उस टाइम बड़ा पैशन था मुझे नई चीजों को लेकर, नए प्रोजेक्ट्स को लेकर, एंड आई लव्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट। आई वांटेड टू बी ऑन फोरफ्रंट ऑफ एवरीथिंग, चाहे जो भी हो रहा हो मुझे था, मुझे इसमें इन्वॉल्व करना है। फिर उसके बाद शोभित भैया ने मुझे सेक्रेटरी बनने के लिए साथ में बोला। उस टाइम तो मैंने वो नायक के अनिल कपूर की तरह हाँ कर दिया कि मैं साथ में। बाद में मुझे रियलाइज हुआ काम बहुत ज्यादा है इसमें, रिपोर्ट मेकिंग एंड एवरीथिंग। पता है क्या होता है, आपको एज अ सेक्रेटरी ढेर सारी रिपोर्ट्स बनानी, तो जितने अभी इन लोगों ने प्रोजेक्ट्स के नाम लिए, जब ये लोग इसको करते हैं, मुझे उसकी रिपोर्ट बनानी पड़ती है, लिख के सारी डिटेल। पॉडकास्ट की भी रिपोर्ट बनाएगा। हाँ, एक्चुअली दिस पॉडकास्ट की रिपोर्ट भी मुझे बना के अपलोड करनी है कि पॉडकास्ट में कैसा था, क्या हुआ, क्या बातें हुई। सो जब ये वाला टाइम है, देन आई थिंक इट वाज वेरी डिफिकल्ट। इससे मैं अपने दोस्त आयुष अग्रवाल को थैंक यू करना चाहूंगा, ही हेल्प मी अलॉट। ठीक है, यश भाई ऑल्सो हमारे टेबल के हैं, यश शाह, उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की। एंड देन अब मुझे मजा आने लगा इस चीज में, रिपोर्ट मेकिंग में। दिस इज समथिंग दैट एवरीवन हैज टू गो थ्रू, इवन यू वेंट थ्रू। हां, एवरीवन हम सब में से सबने किया। Then when you start enjoying something, you don't feel like you're working. So I think नहीं, but now I started loving it. अभी कल जैसे कंटिन्यू करो। वो लव से एक साथ। So yesterday हम लोग मानिक के पास थे, and we went there for से कोई काम था उनके रेस्टोरेंट से, वहां पे भी मैंने फोटोज की फेलोशिप उसको बना दिया। एंड देन उसको बनाते बनाते हम लोग टेबल की बात करने लगे, इतना डीप चले गए, मतलब now I'm enjoying the process. Actually this is the problem also, what happens when few tablers meet ना, वो सिर्फ टेबलिंग नहीं रह जाते, तो people start thinking ये लोग इसके अलावा कोई बात ही नहीं करते। So when your elder brother Mr. Harsh Madhu, when he was the chairman of our table, that time also I was the project convener, and that is the year in which we started our school project, जो पहली स्कूल के का जो पहली नींव डली थी उसी समय डली थी। Exactly, ये मैं प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इसके ऊपर एलैबोरेट करिए। राउंड टेबल अभिनव विद्यालय के पीछे जो पूरा उसके बनने के बिहाइंड द सीन्स प्लीज बताइए। कैसे माय क्वेश्चन टू। हाँ, दूसरा क्वेश्चन भी है कि प्रोजेक्ट कैसे बना, कैसे अभिनव विद्यालय कैसे फाउंड, कैसे आप लोगों ने किया, और वो आज एक पूरा इंस्टीट्यूशन बन गया, वो कैसे बना? I think I'll answer two things from the same question, because
I could not mention about my journey, about how I got inducted. Please. Tabler Vinam Agarwal, he's also my JRG. He basically introduced me to the tabling fraternity. And initially he did not tell me कि exactly मतलब tabling क्या है, कुछ नहीं. ऐसे ही हम लोग कुछ फ्रेंड्स मिल रहे हैं, बिकॉज मैं भी बोर्डिंग स्कूल से था, वो भी बोर्डिंग स्कूल से थे, तो हम लोग मिल रहे हैं और लंच पे मिलते हैं और डिनर पे मिलते हैं, किसी के घर पे मिलते हैं ऐसे. तो जब भी मैं जाता था वो हमेशा वहाँ पे कुछ लोग रहते थे, ग्रुप रहता था. तब तक मुझे पता नहीं था कि ये टेबल का कोई मीटिंग है जिसमें मैं आया हूँ. एक बार लंच पे हम लोग मिले एंड जब मैं फर्स्ट टाइम, वो मेरी फर्स्ट बिजनेस मीट थी जिसमें मैं घुसा, तो एक बड़ा सा नक्शा रखा हुआ था टेबल पे और कुछ स्कूल की ड्राइंग के बारे में बात चल रही थी. मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या है, बिकॉज मैं तो लंच पे आया था. वहां से तो मेरी पहली मीटिंग क्योंकि स्कूल के बारे में थी, तो वो वहीं से मेरी जर्नी चालू हो गई. एंड जिस मीटिंग में डिसाइड हुआ कि हम ये प्रोजेक्ट करने वाले हैं, सो बेसिकली हम लोग एक पुराने टेबलर हैं प्रशांत गुप्ता जी. सो उनके थ्रू ये प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, बिकॉज उनके बचपन के फ्रेंड हैं अभिजीत भैया, जिनके जो केसी देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के मेंबर हैं, जो स्कूल चलाते हैं, उसके थ्रू ये प्रपोजल आया था. सो बेसिकली जो लैंड है वो केसी देवी चैरिटेबल ट्रस्ट का है. जितने भी रिटायर्ड लोग हैं जिनके बारे में मैंने नाम लिया, उन लोगों ने अपने अपने पॉकेट से कुछ कुछ पैसा इकट्ठा करके ये लैंड खरीदा था. और हम लोगों ने उनके साथ एक MOU किया कि स्कूल चलाएंगे आप, लैंड आपका रहेगा और उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, हम लोग डेवलप करके देंगे. एंड ये पूरा स्कूल प्रोजेक्ट जो है ये 4 करोड़ का एस्टिमेटेड था बजट, जब ये सोचा गया था. आई थिंक अराउंड 7 to 8 years बैक. अब 7-8 साल में तो एक्सपेंसेस भी बढ़ गए हैं, तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये पूरा आउटले जो है 5 करोड़ से भी ऊपर का जाएगा. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दैट वो जो एक ईंट हम लोगों ने रखी थी, आज हम लोगों का जो एक पूरा ब्लॉक है वो रेडी हो चुका है. वी हैव 19 वर्किंग क्लासरूम्स, जिसके अंदर 300-350 बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं. वी हैव स्मार्ट क्लासेस एंड एवरीथिंग. मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि वहां से इतना दूर हम लोग का स्कूल पहुंच जाएगा. सभी टेबलर्स ने सपोर्ट किया, सभी स्क्वायर लेग्स ने सपोर्ट किया. जो भी टेबलर्स 40 years के ऊपर जिनकी एज हो जाती है, वो रिटायर हो जाते हैं एज अ टेबलर, उनको स्क्वायर लेग बोला जाता है. राइट. तो जो भी हम लोग के स्क्वायर लेग्स हैं, उन लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया. एंड हियर वी आर. राउंड टेबल इंडिया से भी हम लोग को ग्रांट्स मिलती हैं हर साल. सो बेसिकली आप ऐसा समझ लो कि अगर एक क्लासरूम बनाने में लेट्स से 2 क्लासरूम बनाने में लेट्स से हम लोग को 10 लाख रुपीज खर्चा होता है फॉर एग्जाम्पल, तो लगभग 4 से 5 लाख रुपया हम लोग एज अ ग्रांट राउंड टेबल इंडिया से ले सकते हैं. तो इट्स लाइक अ पार्टनरशिप. आधा पैसा हम डालते हैं, आधा पैसा राउंड टेबल इंडिया डालती है, हम लोग का प्रोजेक्ट हो जाता है. दैट इज हाउ इट इज. So, can you please tell me that how many lives have you impacted through this? Well, it's difficult to keep a count, to be really frank, but I believe more than 10,000 people is what I can ascertain. Easily. If not more, you know. ज़्यादा ही होगा. Because 10,000 तो it's about only VRT 196. उससे राउंड ज़्यादा ही टेबल होगा. ऑर्गेनाइजेशन तो मस्ट बी इन लैक्स. अरे ज़्यादा. I mean, देखिए राउंड टेबल इंडिया जो है वो पर डे एक क्लासरूम बनाता है. आपके क्लास में कितने बच्चे हैं? 30 around. So per day 30 new students are getting added, and so in 1 year you can ascertain कि कितने बच्चे ऐड होते होंगे. और उसी एक क्लासरूम में हर साल एक क्लास ऐड होती रहती है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इवन कंपाउंड की कितने बच्चे This is only FT. उसके other community service which we do is वो अलग ही काउंट होगा. So ये मेजर नहीं कर सकते. एंड जितने भी हम लोग के स्कूल प्रोजेक्ट्स होते हैं, इट इज अ नॉर्म, इट इज मैंडेटरी कि उस स्कूल का या तो नाम ही राउंड टेबल समथिंग XYZ स्कूल होता है, या फिर उस बिल्डिंग के ऊपर राउंड टेबल इंडिया की बहुत ही प्रोमिनेंट ब्रांडिंग होती है. तो जितने भी बच्चे राउंड टेबल इंडिया से पढ़ के निकलते हैं, उनको सबको पता रहता है कि हाँ ये स्कूल में राउंड टेबल इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है. सबसे बड़ा जो हम लोग का अभी तक सपोर्ट रहा है वो PNG से रहा है, PNG शिक्षा. सो बेसिकली आई थिंक हम लोग को पता होगा कि PNG के जितने प्रोडक्ट्स होते हैं, हर प्रोडक्ट के ऊपर शायद 1 रुपया है समथिंग वो लोग PNG शिक्षा में डोनेट करते हैं थ्रू CSR. एंड देन PNG जो है वो राउंड टेबल इंडिया को ग्रांट देती है. उस राउंड टेबल के CSR पार्टनर्स हैं. PNG is one of the CSR Oracle है. A lot of these companies are CSR. उनके CSR प्रोजेक्ट्स हमारे राउंड टेबल से कोलैबोरेट. The longest known and the most standing one is PNG. कई बार PNG की टीम भी विजिट करके
और हम लोग के स्कूल। ठीक है, मैं रोहन से आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। तो नेक्स्ट ईयर यू गोइंग टू बी द चेयरमैन ऑफ एरिया 8। आपने क्या क्या सोचा है, क्या चेंजेस आप लाएंगे या क्या क्या चीजें आप अंडरटेक करेंगे अपनी चेयरमैनशिप के अंदर नेक्स्ट ईयर? क्या क्या सोचा आपने? बेसिकली पूरा टेन्योर जो है मेरे हिसाब से विल फोकस ऑन कम्युनिटी सर्विस, उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा एंड बिल्डिंग क्लासरूम्स और हिल प्रोजेक्ट्स पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। और पार्टी कैसे हो जाएगी वो देखो वो बाय प्रोडक्ट है, उसको सोचना उसी में चाहिए तुम्हें। नहीं वो बाय प्रोडक्ट है। जब आप लोग अच्छा काम करेंगे तो सेलिब्रेट करने का मन करेगा ही करेगा, ठीक है? तो पहले अच्छा काम करिए सब लोग, उसके बाद सेलिब्रेशन तो होती रहेगी। हम लोग की राय पहले सेलिब्रेट कर लीजिए तो अपने आप अच्छा काम हो जाएगा। पहले काम करेंगे, पहले काम उसके बाद सेलिब्रेशन। आई थिंक दिस इज अ वेरी नाइस एग्जांपल ऑफ राउंड टेबल के दो एस्पेक्ट, कम्युनिटी सर्विस एंड फेलोशिप। ये प्रोजेक्ट तीन लोग तीन अलग अलग चीजें वो करें, एंड फोर्थ मैं हूँ जो हर चीज में मिक्स हो गई, जो कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं, स्पोर्ट्स भी एक इम्पोर्टेंट फैसेट है। अब वो हालांकि फेलोशिप में ही आ गया है, बट ठीक है, स्पोर्ट्स में भी ध्यान दिया जाएगा। बट मेरा माय प्राइमरी ऑब्जेक्टिव विल बी बिल्डिंग मोर एंड मोर क्लास। Important and very good aspect of tabling that we missed till now is the twinklers. For all those who have kids, तो basically आप चाहते हो कि भाई आपके बच्चे अच्छी कंपनी में रहें, लाइक माइंडेड बच्चों के साथ खेले, आपस में एक दूसरे से उनका इंटरेक्शन हो, तो वो लोग सीखेंगे भी कुछ और ग्रोथ वैल्यूज भी सेम शेयर होंगी। तो हम लोग का जैसे राउंड टेबल है, लेडीज सर्कल है, वैसे ही एक ट्विंकलर्स क्लब है। जितने भी हम लोगों के बच्चे हैं, दे आर ऑल अ पार्ट ऑफ दी ट्विंकलर्स क्लब। और ट्विंकलर्स में भी ट्विंकलर्स के चेयरमैन होते हैं, ट्विंकलर्स के वो होते हैं, तो उससे उन लोगों को अभी से एक लर्निंग मिलती है सोसाइटी को। और उनकी भी अलग अलग एक्टिविटीज होती है ट्विंकलर्स को एंगेज करने के लिए भी। पोएम रेसिटेशन होता है, ड्राइंग कंपटीशन होता है, स्किट्स होते हैं, तो उनको भी एंगेज किया जाता है। उनकी भी पर्सनालिटी एक्टिविटीज, राइट, उनकी भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस होती हैं। So there's, as we said, there's something for everyone. इनफैक्ट काफी ट्विंकलर्स जो मतलब नॉट एग्जैक्टली किड्स बट यंग अडल्ट्स जो कॉलेज में जाने वाले या सीनियर क्लासेस में, ये लोग ग्रुप बना के इंटरनेशनली ट्रैवल भी करते हैं। इनफैक्ट आई थिंक नेदरलैंड से एक ग्रुप ऑफ टेबलर्स के बच्चे, जर्मनी से आए थे, टेबलर्स के बच्चे आए थे और आकर के सारे हम लोग के टेबलर्स के घर पे दो बच्चे रहे थे और पूरा बनारस वो लोग घूम करके गए थे। सो यू नो इट्स लाइक अ फैमिली। आप भी ट्रैवल करोगे तो पीपल आर रेडी टू होस्ट यू व्हेन यू आर ट्रैवलिंग। और हमारे कुछ ट्विंकलर्स तो हमारे टेबलर भी हो गए। हाँ, एक्चुअली मिस्टर श्रेवाही, मिस्टर दर्श अग्रवाल, मिस्टर प्रत्युष, ये लोग जो ट्विंकलर्स थे, जो टेबलर्स के बच्चे थे, अब वो टेबलर्स बन गए सेम टेबल में। So this is like a legacy which carries on. क्योंकि केवल सिर्फ एजुकेशनल के लिए, क्योंकि हो सकता है क्योंकि सारे बच्चे तो हो नहीं सकता है कि सिर्फ एकेडमिक में ही सारे के सारे अच्छे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो अदर ऑप्शंस भी उनको मिले हर एक चीज में, क्योंकि फील्ड ऑप्शंस उनको जितने ज्यादा मिलेंगे उतने ज्यादा फील्ड्स में वो जा सकते हैं। मे भी हो सकता है कि कोई ऐसा बच्चा हो जिसको ये चीज ना पसंद हो तो दूसरी चीज पसंद हो या तीसरी चीज पसंद हो, तो उस बारे में उस चीज में वो ब्रीफली जा सकता है। हाँ, हम लोग इस चीज को बहुत प्रमोट करते हैं एज ट्विंकलर्स को। सो मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों से वन लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी रैप अप। VRT 196 के अभी तक के जो बेस्ट प्रोजेक्ट्स हुए आप उनके बारे में बताइए, और जो आगे अब आप प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं जो आपको लगता है कि बहुत अच्छे हैं हमारी कम्युनिटी के लिए। I'll tell you one thing, VRT 196 के सारे ही प्रोजेक्ट्स बेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं और आगे भी जो होंगे वो भी सब बेस्ट होंगे। तो I cannot ऐसे मतलब ये तो वही हो गया कि आप ये पूछ रहे कि आप अपने दोनों बच्चे में सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हैं? हमने किया है, वो भी अच्छा किया, और जो आगे करेंगे वो भी अच्छा करेंगे। One project which is very close to my heart is the Flight of Fantasy definitely. So that was a very good project. And obviously राउंड टेबल अभिनव विद्यालय, इसके लिए तो हम सब लोग काम कर रहे हैं, वो भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है। Publicizing our Round Table India brand is also a very it's a very important thing, because जब हम अपना ब्रांड बिल्डिंग करते हैं तो गुडविल भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ती है। Since we are talking to people in Banaras, I would like to highlight कि आप वाराणसी एयरपोर्ट पे जब आप अराइवल जैसे आप अपने फ्लाइट से निकलते हो और अराइवल लाउंज में आते हो, लिफ्ट के पास में एक बहुत बड़ा सा वुडन आर्ट वर्क रखा हुआ है जो कि G20 जिसपे लिखा हुआ है। आप उसमें नीचे देखेंगे तो राउंड टेबल इंडिया की भी ब्रांडिंग है। सो इट इज सच वी आर डूइंग सच गुड वर्क, वी आर प्राउड
that Roundtable's name is coming on the Indian on the Varanasi airport with the G20 logo. So I think it's even in Udaipur airport there's a big wall जहाँ पे पूरा Roundtable India का logo बना हुआ है. कई लोग वहाँ पे खड़े होके फोटो खिंचवाते हैं काफी. I think there's few और भी जगह पे जहाँ पे Roundtable India का logo लगा हुआ है. I'd like to thank you all for doing this. Again, thank you so much. Thank you so much for having us here. Thank you so much. आपको टाइम निकाल के आए.